Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So this is me Ale Wahid, and in this video we are going to start chapter number 7, which is introduction to trigonometry. So this is from the class number 10, and now we are just going to start our chapter of trigonometry. So in the exercise 7.1, in the question number 1, they have said to draw angles. So therefore I have first of all I am going to define the angle, at what is angle, and then we will start to solve our questions. So first of all, here is the definition of angle, that angle is a union mean milna, union of two non-collinear rays with a common endpoint. सो नॉन कोलिनियर रेज को हम एंगल्स आर्म्स ऑफ एंगल भी कहते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल भी कहते हैं। ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली आप लोगों का so in your angle what is going to do, so this is the angle. Okay, so these are two rays. Okay, let's suppose I am going to draw here angle. So first of all, this is a ray. Okay, and let's suppose this is also a ray. So these are two non-collinear rays, mean which are not collide with each other. Now they united. Let's suppose I have extended this arm, and after the extension, as you can see, both of these endpoints of non-collinear meet with each other at that point, and it can further extend it as it. Okay, so here this point is called as the vertex. So this is the common end point of this angle. So this common end point of an angle can also be called as the vertex of this angle. So this is the common endpoint which is called as a vertex at which two non-collinear rays collide with each other. And you can say, so this is the arm of angle, this is also a arm of angle. You can say this is the non-collinear ray, this is the non-collinear ray, this is the vertex of angle. So here are some things about the angle. Now let's discuss about the initial side of angle and what is the final side of angle. So initial side of angle is the side at which there is the origin position of a ray, and the final side of angle is called as the final position of a ray. Okay, so where is the initial side? So this is the initial side of angle, and this is the final side. So you move from here to here. So the point at which you start, this is called as initial side initial side of angle, and the term to which you end is called as terminal side of angle. Okay, so as you can see here in this diagram, so here you move from this to this. Okay, so this will be your initial side of angle, which is the original position. Okay, so this is the original position and initial side, and this will be the terminal side of your angle. Okay, now let's discuss about the position or direction of your angle. So now this is the anti-clockwise direction. So anti-clockwise is always as this. So I am drawing the anti-clockwise position as here. So anti-clockwise as this, कि आप इस तरह से मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप इस तरह से मूव करते हैं तो इस पोजीशन को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन द एंगल इज पॉजिटिव. Angle is positive. What is mean by positive angle? Mean angle will always be in plus 30 degree, 60 degree, 90 degree, 120 degree. But what happens when we move to here? Now let's consider that your angle is in clockwise direction. So here it is clockwise direction. So clockwise direction is always as डेट साइड. सो इस तरह से जब आपका सर्कल चलता है, जिस तरह आपकी क्लॉक चलती है, उसको हम इस तरह से क्लॉकवाइज होता है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज होता है. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से डायरेक्शन है. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह है और यहाँ पर भी ये एंगल इस तरह से जा रहे हैं.
सो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमेशा नेगेटिव होता है, एंगल आपका नेगेटिव होगा, यानी एंगल आपका -60 होगा, -30 एंगल हो सकता है, -90 एंगल होगा, -120 होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस, और आप इसको ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। सो जब एंगल इस तरह से स्टार्ट होगा तो वो नेगेटिव में होगा, जब उस तरह से स्टार्ट हो रहा था तो वो पॉजिटिव था। सो ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 है उनमें एंगल्स ड्रॉ करने के लिए दिया गया था, तो मैंने सोचा कि एंगल्स ड्रॉ करने से पहले हम पहले एंगल के बारे में समझ लें कि एंगल होता क्या है, इसके कितना रेज क्या है, एंड पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, एंगल का आर्म क्या होता है, इनिशियल साइड कौन सी है, फाइनल साइड एंगल की कौन सी है, और मैं फिर आपको बता दूं कि एंगल पॉजिटिव कब होता है और एंगल नेगेटिव कब होता है। सो अब हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा एक एंगल को ड्रॉ करना। सो अब हम लोग चलते हैं अपने 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। अच्छा बच्चों, 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें कहा है कि आप लोग 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके दिखाएं। सो जब भी आपने एंगल बनाने आपने इस तरह से स्ट्रेट लाइंस आप लगाएंगे, ठीक है। सो आप लोगों को पता है कि यहाँ से हमारा 0 डिग्री होता है, ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री आ गया, यहाँ पर 180 डिग्री हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 270, और फिर यहाँ पर अगेन 360 डिग्री आ जाता है। सो ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का मैंने बना दिया। अब हमने इसमें से 30 डिग्री बनाना है, ठीक है। सो 30 डिग्री आप किस तरह से बनाएंगे, सिंपल सा है, आपने ये डी ले लेना है इस तरह से, ठीक है, ये वाला डी, इसको आपने इस सेंटर पॉइंट के ऊपर प्लेस करना है, जैसे कि मैं ये कर रही हूँ इस तरह से, ठीक है, मैंने प्लेस कर लिया है, और ये डी पूरा यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। सो अब हम लोगों ने 30 डिग्री को इसमें प्लेस करना है, सो आप इसके ऊपर 30 डिग्री फाइंड आउट करेंगे और उस पर डॉट लगा देंगे। डॉट लगा देने के बाद आप इसको हटा लेंगे यहाँ से, और आपने स्ट्रेट यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, ऐसे, ठीक है, और उसको आप बता देंगे। सो यहाँ से अब आपका इस तरफ ये एक थीटा डिग्री एक बन गई है, और ये 30 डिग्री का हमारा ये एंगल बन चुका है, ठीक है। सो अब आपको ने इसी तरह के दूसरे एंगल्स आपको दिए गए हैं, और बिल्कुल सेम आपने इसी तरह से बनाना है। जैसे अगर नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि हम लोगों ने 22.5 का एंगल बनाना है, ठीक है। सो अब हम ये 30 वाले को रेस कर देते हैं और फिर आती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर आपका 0 डिग्री हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, और यहाँ पर 270, फिर अगेन यहाँ पर 360 आ जाएगा। सो अब उन्होंने हमें कहा है कि 22.5 आपने बनाना है। तो 22 को आप 2 पर डिवाइड कर दें, ठीक है। सो आपने ये नहीं करना कि 22 को 2 पर डिवाइड कर दें, इस तरह से आप लोगों ने नहीं करना है। सिंपली आप लोगों ने अगेन ये अपने डी को यहाँ पर आपने प्लेस करना है 90 डिग्री के ऊपर, बिल्कुल आपका स्ट्रेट ही आना चाहिए। देन उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लोग देखें कि 20 से आगे 21 की एक लाइन आती है, फिर 22 की आती है, 22 और 23 के बीच में आपने ये डॉट इस तरह से लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहीं पर ही मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। सो ये आपके पास आपका एंगल बन जाएगा 22 का, ठीक है। सो थोड़ी सी और लंबी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास 22.5 का एंगल इस तरह से बन चुका है। सो ये 22.5 का एंगल है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ जो है समझ में आ चुक रही होगी। सो नेक्स्ट उन्होंने 135 का एंगल कहा है। सो ये 122 का ऐसे ही रहने देते हैं। सो 135 का एंगल हमने ड्रॉ करना है। सो 135 क्या है, 90 से भी आगे होगा ना, ठीक है, यानी पहले हमने 100 करना है। सो ये 0 से लेकर 90 और 100 यहाँ होगा, फिर 100 में 135 तकरीबन ये यहाँ तक बनेगा। सो अगेन आप लोग ये डी रख लें, ठीक है। सो ये डी मैंने यहाँ पर रख लिया है। सो अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तक तो 90 आ रहा है, आगे आपका यहाँ तक 100 पूरा हो रहा है, और ये 110 है, ये 120, ये 30 और 30 के यहाँ पर 30 से यहाँ 135 बन रहा है, और मैंने यहाँ पर डॉट लगा लिया है। अब मैं सिंपल यहाँ पर एक
लाइन ड्रॉ कर दूंगी कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये 122 वाला जो एंगल है ये मैं रेस कर दूंगी ताकि इसमें और आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सो अब आपका ये 135 का एंगल यहाँ से यहाँ तक ये आपका 135 का एंगल जो है वो बन चुका है, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि 225 का एंगल आप ड्रॉ करके दिखाएं। सो ये 135 का था, अब हमने किसका ड्रॉ करना है, 225 का एंगल। सो इसको हम लोग मिटा देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जी 225 का एंगल ड्रॉ करने। सो यहाँ तक आप लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर 180 आ रहा था, यानी अब हमने 180 से भी आगे ऑनवर्ड चलना है। सो यहाँ तक तो आपका हो चुका है 180। अब आपने डी को उल्टा रखना है, ठीक है। पहले हम इस तरह रख रहे थे, पहले हम इस तरह थे, अब क्योंकि 225 है तो 225 कुछ यहाँ पर आएगा। सो यहाँ पर अगर मैं इस तरह रख के करूँ तो 125 नहीं आ सकता, तो आपने इसको इस तरह करके यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही रख देना है 90 डिग्री के बिल्कुल इस तरह रखने के बाद अब आप लोगों ने देखना है कि 180 यहाँ है। अब आपने इस डी के यहाँ आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 180 है। अच्छा ध्यान रखिएगा कि 180 पूरा इस लाइन पे आना चाहिए। तो 180 फिर 170 हो गया, फिर यहाँ 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 और आप लोग चले जाएंगे अब 180 है ना, सो आगे डिक्रीजिंग वैल्यू लिखी हुई है, तो इस वजह से आप इस डी के ऊपर नहीं देखेंगे। 180 में आपने कितना ऐड करना है, 200 तक लेके जाना है। सो 100 से यहाँ 190 हो जाएगा, 170 की जगह 190 समझे, यहाँ पर 200 हो जाएगा। फिर 200 के बाद 210 हो जाएगा, यहाँ पर 220 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 225 होगा। इधर हल्का सा डॉट लगा लें जैसे मैंने ये लगा लिया, ठीक है। अब मैं इधर लाइन ड्रॉ कर दूंगी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास 225 का एंगल ड्रॉ हो चुका है, जो कि यहाँ से है और यहाँ तक गया है। ये है आपके पास 225 का एंगल ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। सो अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नेगेटिव में आ रहे हैं, ठीक है। सो अब नेगेटिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास 5 और उसमें उन्होंने कहा -60 डिग्री का एंगल। अब ये माइनस में आ गया। सो आपको पता है कि जब एंगल पॉजिटिव होता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब एंगल पॉजिटिव था तब हम किस तरह गए थे, तब हमने ऐसे चलना था, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। जब हम इधर से स्टार्ट करते हैं और एंगल यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, या एंगल हम यहाँ तक लेके आ रहे थे, या एंगल हम यहाँ तक लेके आ रहे थे, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर रहे थे या इस तरह लेके जा रहे थे, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन थी। अब हमने बनानी है नेगेटिव डायरेक्शन, तो वो क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी हमने एंगल को यहाँ से इस तरह लेके जाना है, यहाँ से इस तरह, यहाँ से इस तरह और फिर यहाँ से इस तरह से। अब हम ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं और क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इधर 0 डिग्री होगा, 0 से 90 यहाँ आएगा और याद रखिए -90 होगा ये, फिर यहाँ पर -180 और यहाँ पर -270 डिग्री और यहाँ पर वापसी 360 आ जाएगा। अब उन्होंने हमें कहा कि -60 बनाना है, तो सिंपली आप क्या करोगे ये डी कुछ इस तरह से लोगे, यहाँ पर रख दोगे और यहाँ पर आपने 60 यहाँ बन रहा है, ठीक है। मैं जूम करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। सो यहाँ 0 है, ठीक है, 0 से 10, यहाँ 20 आ गया, यहाँ 30, 40, 50 और ये 60। सो 60 के बाहर लगा लें जी डॉट, ये जिस तरह मैंने लगा दिया, ठीक है। अब आप लाइन ड्रॉ करने से ये -60 का एंगल ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। सो ये देख सकते हैं आप लोग, ये नेगेटिव यहाँ से अब इस तरह से एंगल इधर के है, तो ये नेगेटिव 60 डिग्री का एंगल है, नेगेटिव में है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कौन सा एंगल दिया है, 6th क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें कहा -120 का बना के दिखाना। अब हमने 60 नहीं -120 का ही बनाना है, ठीक है। तो ये 60 वाले को आप
वाइप कर दें। ठीक है, अब ये 90 है। ठीक है, 90 से भी हमने आगे जाना है। ठीक है, 180 और 90 तकरीबन यहाँ पर आपके पास आएगा। अगेन आप लोग डी रख लें इधर, जैसे कि मैंने ये रख दिया। अब यहाँ तक तो हो गया 90। ठीक है, 90 से यहाँ 100 हो गया, 110। ठीक है, और ये 120 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ मैं जूम करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखो यहाँ पर 90 आ रहा था, ये 100 है, ये 110 है, ये 120 और हमने बनाना भी 120 का है। सो यहाँ 120 के ऊपर डॉट लगा लो। ठीक है, लगा लिया। अब लाइन ड्रॉ कर लो सिंपली। सो ये मैंने इस तरह से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, सो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक -120 का एंगल बन गया। ये चीज़ याद रखनी कि जो एरो की डायरेक्शन है वो इस तरह आ जाएगी। कभी ये ना करना कि इस तरह से एंगल ड्रॉ करना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो 225 का एंगल बन जाएगा, ये -120 है। ठीक है, सो इस एरो का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वरना नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। सो -120 के बाद उन्होंने कहा -150 का बना के दिखाओ। सो यहाँ तक 120 था। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि ये डी वापसी रखोगे, यहाँ पर रख दिया। यहाँ 120 आ रहा था। ठीक है, अब ये यहाँ पर, ठीक है, मैं अब जूम करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये 120 था, अब 130, 140 और ये 150 है। तो 150 के आगे ये मैंने डॉट लगा दिया। ठीक है, अब मैं इधर लाइन ड्रॉ कर दूँगी। सो ये एंगल जी बन चुका है आपका 150 का। सो यहाँ तक 120 था। अब 120 से जब आगे हम यहाँ तक जाएंगे तो ये हमारे पास -150 का एंगल जी बन चुका है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट को क्वेश्चन देखें तो उसमें हम लोगों ने एंगल बनाना है 275 का, सॉरी 225, -225 का। ठीक है, सो -225 का एंगल है। और अब देखें 225 180 से भी यहाँ पर आएगा तकरीबन। ठीक है, सो अब इसको ड्रॉ करने के लिए आप कैसे रखेंगे अपने डी को। सो आपने अपने डी को लेके जाना है और यहाँ पर रख देना है सीधा, क्योंकि अब हमने एंगल इधर बना ड्रॉ करना है। ठीक है, नेगेटिव में बट इधर। सो यहाँ पर अब आप नीचे वाली लाइन देखेंगे, जूम करके दिखा रही हूँ। सो इस डी में एक ऊपर वाली लाइन है जिसमें 0, 10, 20, 30, 40, 50 ये लिखा हुआ है, इसको ना देखें। नीचे वाली देखिए जिसमें 180 लिखा हुआ है, 170 या 160 या 150 है। ठीक है, सो 180 से आगे आपने बढ़ाते जाना है, ये कम हो रहा है आपने बढ़ाना है। सो 180 से आगे क्या आएगा 190, 190 से आगे क्या आएगा 200, 200 से आगे क्या आएगा 210, 220 आएगा। ठीक है, 20 के आगे यहाँ पर क्या आएगा 225। सो ये यहाँ पर 225 आ जाएगा। अब मैं इस लाइन को ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, सो सिंपली मैंने इसको ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। सो अब ये लाइन्स आप भूल जाएं, ये 90 का एंगल था। ठीक है, सो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये आपका -225 डिग्री का एंगल। ठीक है, सो ये हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए थे एंगल्स के, -225 का एंगल दिया हुआ था। सो वो सारे एंगल्स हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए और समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा हुआ है कि डिग्री और मिनट इसके क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, और साथ हम डेफिनेशंस भी देखेंगे इसकी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप सब लोगों को तक पहुंच सके। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।